ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں محافظین ملک و دستور کی سونامی، ترنگا ریلی میں لاکھوں افراد کی شرکت، شہریت ترمیمی قانون، NRC اور NPR پر سب کی ایک ہی آواز۔ ہمارا احتجاج رنگ لائے گا، حکومت شہریت ترمیمی قانون فوراً واپس لے، صدر مجلس علماء مشائقین کا خطاب۔ اور وادی کشمیر میں ضروری خدمات کے لیے انٹرنیٹ بحال کیا جائے، آزادی اظہار پر پابندی دستوری حقوق کے خلاف، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے آج ترنگا ریلی حیدرآباد میں ہوئی، سونامی دیکھی گئی محافظین دستور کی، اور جس طرح سے لوگ چوک در چوک یہاں پر شریک ہوتے نظر آئے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جس طرح سے لوک سبھا کے اندر شہریت ترمیمی قانون بل کے اوپر جو بل کی کاپی پھاڑ دی تھی، اس کے بعد سے پورے ملک میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور پورے ملک کو اس عمل نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور آج کارواں دیکھا گیا، انسانی سروں کا سمندر، انسانی سونامی جسے کہا جاتا ہے۔ میر عالم عیدگاہ سے لے کر شاستری پورم تک صرف انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ ہر کسی کے لب پر ایک ہی آواز تھی کہ شہریت ترمیمی قانون نہیں چاہیے، NRC نہیں چاہیے، NPR نہیں چاہیے۔ خواتین اور دوسرے طبقے سے وابستہ لوگ بھی اس احتجاجی ریلی میں شریک ہوئے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں قومی ترنگا تھا، اور جیسے وہ اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ ہم دستور بچانے نکلے ہیں، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہمراہ علماء مشائقین، مجلسی ارکان مقننہ، مجلسی کارپوریٹرز، مجلسی کارکن، محبان مجلس کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد اس ترنگا ریلی میں شریک ہوئی۔ ہر طرف انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ اگر عیدگاہ میر علم سے اگر نظر دوڑائی جائے تو شاستری پورم تک صرف انسانی سر نظر آ رہے تھے، اور سب کے لبوں پر یہی عزم تھا کہ ہم دستور کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں شہریت ترمیمی قانون قبول نہیں ہے، ہمیں NRC قبول نہیں ہے، ہمیں NPR قبول نہیں ہے۔ فلک شگاف نعرے لگائے گئے، جس میں یہ بھی ایک نعرہ دیکھا گیا کہ تانا شاہی نہیں چلے گی، مودی اور امیت شاہ کی تانا شاہی نہیں چلے گی، ہم دستور کا تحفظ چاہتے ہیں۔ بلا لحاظ مذہب و ملت سماجی جہدکاروں نے بھی اس ریلی کے اندر شرکت کرتے ہوئے دستور کے تحفظ کا عزم کیا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ کئی اضلاع سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ امٹ پڑے تھے۔ خواتین بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس ترنگا ریلی میں شریک ہوئی، طلباء کی بڑی تعداد دیکھی گئی، معصوم اسکولی طلباء بھی اس ترنگا مارچ میں شریک ہوئے اور اس بات کا عزم کیا کہ ہم آنے والا مستقبل ہیں، اور ہندوستان کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم اپنے دستور کا تحفظ کریں گے، ہم اپنے آئین کا تحفظ کریں گے، اور ہم ہمارے ملک کا تحفظ کریں گے۔ اور جس طرح سے مرکزی حکومت کو یہاں سے ایک واضح پیام گیا ہے کہ جس طرح سے آج ترنگا ریلی نکالی گئی، سب کی لبوں پر ایک ہی آواز تھی، اور سب کے لبوں پر ایک ہی، یعنی کہ جس طرح سے نعرے دیکھے گئے، اس بات سے یہ پیام مرکزی حکومت تک پہنچتا ہے کہ فوری، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر شہریت ترمیمی قانون کو واپس لیا جائے، یہی مطالبہ تھا، اور اس بات کے کئی بینرز، پلے کارڈز اس ترنگا ریلی میں نظر آئے۔ ہمارا احتجاج یہیں پر ختم نہیں ہوا ہے، ہماری لڑائی آگے بھی جاری رہے گی۔ ترنگا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بات کہی۔
बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत तक ये पैगाम हैदराबाद से पहुंच गया होगा कि यहाँ पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कई अफराद जो कि लाखों की तादाद में आए थे, ये बात का पैगाम दिया है कि हमें शरीयत तरमीमी कानून, NRC और NPR नहीं चाहिए। और इस बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी बताया कि 25 जनवरी को चार मीनार के दामन में जलसा है और तमाम को वहां पर शरीक होना है और 25 से 26 की दरमियानी शब 1 बजे के वक्त चार मीनार के पास कौमी परचम लहराया जाएगा। और इसके साथ साथ बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि जिस तरह से हम इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, आगे भी इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस रैली में शिरकत करने वालों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। उलमाओं का, मशाइखीन का, हमारे क्रिश्चियन फादर का, पास्टर का और दीगर मोअज़्ज़िज़ तंजीमों के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम का कि आपने इस एहतजाज में शिरकत की और यकीनन ताला हमारा ये एहतजाज ज़रूर रंग लाएगा। ये एहतजाज बात ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये एहतजाज जारी रहेगा। और आप जानते हैं कि 25 दिसंबर के दिन रात में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला चार मीनार के दामन में हम 26 जनवरी का जश्न मनाने के लिए 25 जनवरी की रात को चार मीनार के सामने फिर से जमा होंगे और वहाँ पर एक जलसे आम भी होगा, मुशायरा भी होगा। और जैसा ही रात के 12 बजेंगे हम इंशाअल्लाह ताला अपने तिरंगे को चार मीनार के दामन से लहराकर जन गण मन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ 30 जनवरी के दिन जो महात्मा गांधी को उस दिन नाथुराम गोडसे ने और उनके साथियों ने मिलकर कत्ल किया था, उस दिन इंशाअल्लाह ताला मोहम्मदी लाइन से बापू घाट तक एक चेन, ह्यूमन चेन वहाँ पर सुबह 11 बजे से वहाँ पर उसका आगाज़ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप उसमें शिरकत कीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस का, GHMC का, पूरे मौसर इंतजामात किए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का जिन्होंने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, बिला लिहाज हमारे सियासी और इख्तलाफात हो सकते हैं, उससे उठकर आज आप यहाँ पर जमा होकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि हैदराबाद की आवाम, तेलंगाना की आवाम आज के इस एहतजाजी जलसे से CAA को रिजेक्ट करती है। क्या आप सिटीजन अमेंडमेंट कानून के खिलाफ हैं? क्या आप सिटीजन अमेंडमेंट कानून के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप हिंदुस्तान को सेकुलर रखना चाहते हैं? क्या आप भारत को सेकुलर रखना चाहते हैं? क्या आप भारत के अंबेडकर के संविधान को बचाकर रखना चाहेंगे? क्या संविधान को, हिंदुस्तान के आईन को बचाएंगे? तो सुन लो हिंदुस्तान, भारत के वजीर आजम, ये लाखों का मजमा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को मुस्तरद करता है और हम दोबारा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए, NPR पर काम रोक दिया जाए और NRC पर कभी भी काम ना हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात जिसका इशारा मौलाना जाफर पाशा साहब ने किया कि अगर आपके महल्ले जात में कोई गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई आकर आपसे आधार कार्ड पूछेगा तो क्या आप आधार कार्ड दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? क्या आप कागज दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे? क्या कागज दिखाएंगे? क्या आप आधार कार्ड दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? आप बोलेंगे मैं हिंदुस्तान भारत का हूं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी और पुलिस का इंतजामिया भी इस तरह की हरकत ना करे।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जरूरी खिदमात के लिए इंटरनेट को बहाल करने की हिदायत दी है। आला अदालत ने आज अपने फैसले में जम्मू कश्मीर में आए तमाम पाबंदियों पर एक हफ्ते में नजरसानी की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच, जिसकी क़ियादत जस्टिस एनवी रमना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इजहार आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत आती है। शख्सी आज़ादी सबसे अहम है। गैर मामूली हालात में ही इंटरनेट बंद किया जाना चाहिए। इंटरनेट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवाई भी शामिल थे। आला अदालत की बेंच ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आज़ादी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। आला अदालत ने यह भी हिदायत दी कि पाबंदियों से मुताल्लिक़ जो भी अहकामात थे वो मंजर आम पर लाए जाएं, ताकि अवाम को अगर कोई एतराज़ हो तो उस पर कानून से रुजू हो। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। और दूसरी तरफ दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीनों से जो मवासलाती और इंटरनेट शटडाउन चल रहा है, उस पर जस्टिस रमना ने अपने फैसले में कहा कि इंटरनेट और मवासलाती शटडाउन दस्तूरी उसूलों के खिलाफ है। जस्टिस रमना ने यह भी कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई भी अहकाम जारी नहीं किया गया, ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत की तरफ से इंटरनेट और मवासलाती शटडाउन किया गया, 144 नाफिज किया गया, लेकिन इसके अहकाम पब्लिक डोमेन में नहीं रखे गए और ना ही इसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन अहकामात को पब्लिक डोमेन में रखने की हुकूमत को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कश्मीर में पिछले 5 से ऊपर महीने में जो एक कम्युनिकेशन और मूवमेंट लॉकडाउन चल रहा है, उसके ऊपर जस्टिस रमन्ना ने आज अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया और उन्होंने बहुत सी बातें रखी। उसमें अहम बातें ये हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है, ये उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है, जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं। जब स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी कश्मीर में पाबंदियों और बाज कायदीन की गिरफ्तारियों को लेकर अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। गुलाम नबी आजाद के वकील ने बताया कि आला अदालत ने 3 या 4 अहम बातों का हवाला दिया। आला अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि दस्तूर के मुताबिक इंटरनेट तक रसाई हमारा बुनियादी हक है। इस बात को लेकर हुकूमत के मौक़िफ़ की सरजनिश की गई। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंटरनेट पर पाबंदी की दस्तूर इजाज़त नहीं देता है, ये अदालत ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में आज उन दरखास्तों की भी समाअत होने वाली है जो शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ दाखिल की गई थी। मुख्तलिफ रियासतों में दरखास्तें दाखिल की गईं। इस पर मरकज़ी हुकूमत ने आला अदालत से रुजू होकर दरखास्त की कि जो दरखास्तें रियासतों में दाखिल की गई हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अगर कोई रियासत अलग फैसला सुनाती है तो इसके असरात पड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी के कई खादीम एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत कर रहे हैं। हजारों लोग आज मुल्क में सड़कों पर उतर आ रहे हैं। बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान उसके कारकुनों ने संगबारी की थी। 80 और 90 के दहे में एबीवीपी के कारकुनों ने कितनी बसें जलाई थी, ये बात भी बीजेपी को नहीं भूलनी चाहिए। उनकी बात होती है, बट हजारों लाखों करोड़ों में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे? आप ही की पार्टी के बहुत से लोग एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, उसका आप क्या करेंगे? और ये बात भूल गए जिस तरीके से आप लोगों ने 71, 72, 73 में इमरजेंसी के पहले आपके लोगों की पत्थरबाजी हुई थी, जब 80 और 90 के दशक में इसी तरीके के विरोध सड़कों पे होते थे। एबीवीपी ने कितनी बार बसें जलाई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे समय में कई बार इस तरीके के विरोध हुए, उसके बारे में आप क्या करेंगे? आप पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने जेएनयू मामले पर कहा कि अब तो बीजेपी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। उनका कहना था कि अगर वाइस चांसलर अपने तुलबा से बात नहीं करेंगे और उल्टा लेक्चर देंगे तो ये तो ठीक नहीं रहेगा।
उधर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने जेएनयू में जारी तनाज़े पर कहा कि उन्हें लगता है कि जेएनयू की बुनियाद ही गलत होती आ रही है। उनका कहना था कि बार बार जेएनयू में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। उनका कहना था कि जो कानून दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, वैसा ही कानून जेएनयू में भी होना चाहिए। मुझे लगता है जेएनयू की जो नींव थी वहीं से कुछ गड़बड़ हुआ। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये नई बात नहीं जेएनयू की। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही और तलबा व अवाम की आवाज़ को दबाने वाली मोदी हुकूमत पर तमाचा रसीद किया है। कश्मीर से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुरजेवाला का कहना था कि आला अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इंटरनेट अब बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है और तवील मुद्दत के लिए उस पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत दफ़ा 144 के तहत अवाम की आवाज़ को दबा रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मक़दम किया। मीडिया से बात करते हुए आज़ाद ने कहा कि आला अदालत की बेंच ने जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला सुनाया है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने वादी कश्मीर के अवाम की नब्ज़ को जानकर ही ये फैसला सुनाया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज वाराणसी पहुंची। वाराणसी पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने मुकामी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद में प्रियंका गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तलबा से भी मुलाकात की। इससे पहले प्रियंका गांधी के वाराणसी पहुंचने से कांग्रेसी कारकुनों के दरमियान लफ्जी बहस और तकरार देखी गई। बाज़ कारकुनों ने तो पार्टी छोड़ देने की भी धमकी दी, लेकिन अभी तक इस बहस और तकरार की वजह का पता नहीं चल पाया। ताहम कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर हालात पैदा हुए थे और प्रियंका गांधी के आने की इत्तला नहीं दी गई थी, उसी बात को लेकर वहां पर एहतजाज हो रहा था। हैदराबाद में आज तिरंगा रैली के मौके पर रजाकाराना तौर पर ताजरीन की तरफ से अपने कारोबार को बंद रखा गया। समाज का हर तबका तिरंगा रैली में शिरकत के लिए पाबंद था। जिस तरह से लोग नजर आए, इंसानी सरों का समंदर नजर आया। तालीमी इदारे भी आज बंद देखे गए। कई तंजीमों ने तिरंगा मार्च का खैर मक़दम किया था और शहर में रजाकाराना तौर पर आज कारोबार बंद देखे गए। बीजेपी के लीडर व मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन क़ायदीन से शरीयत तरमीमी कानून के बारे में सांप सीढ़ी का खेल बंद करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि जो लोग शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें खुद पता है कि वो अवाम को इस बारे में सही जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के दारुलकुमत अमरावती के रायापुडी देहात में पुलिस के खिलाफ देहातियों ने एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को देहात में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। मुकामी अवाम की तरफ से 3 दारुल हुकूमतों के जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के मंसूबे को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस के साथ अवाम की बहस और तकरार देखी गई और पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि हिंदुस्तान बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए दस्तूर पर चलता है, किसी मजहब की बुनियाद पर नहीं चलता। उनका कहना था कि शरिया कानून भी हिंदुस्तान में नहीं चलता है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शुएब इकबाल के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि शुएब इकबाल ने कितनी इश्तियालंगेजी की है, इसके बारे में सभी को पता है। उन्होंने शुएब इकबाल का एक पुराना वीडियो भी मीडिया के लिए जारी किया। कश्मीर के अवाम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मक़दम किया गया है। नौजवानों का कहना था कि कई महीनों से हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी से भी अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बैरूनी सिफारतकारों के वफ़द ने आज अपने कश्मीर दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों से बातचीत की। वादी के हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद की दावत पर यह डेलीगेशन वादी पहुंचा है। इसमें यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे शामिल नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने आज फरोग इंसानी वसाइल के सेक्रेटरी अमित खारे से मुलाकात करते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालात से वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए वीसी जगदीश कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी में हालात पूरी तरह से काबू में हैं। तलबा बिलखुसूस लड़कियों की सलामती को भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी की गई है, ज़रूरत पड़ने पर मजीद तोसी की जाएगी और इस बात से भी फरोग इंसानी वसाइल के सेक्रेटरी को वाकिफ करवाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहीन बाग के इलाके से पुलिस के बैरिकेड हटाने की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि शाहीन बाग के इलाके में शहरियत तरमीम कानून NRC के खिलाफ गुज़िश्ता 25 दिनों से एहतजाज जारी है। दरखास्त गुजारों ने कहा था कि पुलिस के बैरिकेड से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। ये एहतजाज सुबह और रात में भी जारी रहता है, जिसमें खवातीन अपने कमसीन बच्चों, नौमौलूद और शेरखानों के साथ शिरकत कर रही है। तुषार सहदेव और रमन कालरा की तरफ से चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट DN पटेल और जस्टिस हरिकृष्ण की डिवीजन बेंच ने ये दरखास्तें रुजू की गई थी। दरखास्त गुजारों का कहना था कि खवातीन के एहतजाज से आसपास के इलाके में ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। दरखास्त गुजार ने कहा कि एहतजाजियों ने वहां पर बैरिकेड्स अपनी तरफ से लगा दिए हैं, जिससे राहरू अवाम को मुश्किलात का सामना है, लेकिन अदालत ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि शाहीन बाग के इस इलाके में खवातीन वहीं पर खाना खाती हैं और वहीं पर एहतजाज कर रही हैं। हुकूमत हिंद की दावत पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर 15 बैरूनी सिफारतकार पहुंचे हैं, लेकिन कई कायदीन ने उनके इस दौरे पर सवाल उठाए हैं। पैंथर्स पार्टी के लीडर भीम सिंह का कहना था कि आखिर बैरूनी सिफारतकार किससे मुलाकात करेंगे। रियासत के कायदीन को तो महरूस रख दिया गया है, इस दौरान ये वक्त मिलेगा तो किससे मिलेगा। कांग्रेस लीडर PL पुनिया ने भी बैरूनी सिफारतकारों के दौरे कश्मीर को मुज़क्का खैज करार दिया है। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क के कायदीन को कश्मीर जाने से रोका जाता है और बैरूनी सिफारतकारों को बुलाकर कश्मीर का दौरा कराया जाता है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा गया। JNU के बाबुल दाखिले के पास पुलिस तैनात नजर आई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी JNU के पास एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। तलबा पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था। जैसा कि नाज़रीन आपको बता दें कि आज से जो जलसा हुआ है उसके बारे में मज़ीद तफसीलात हम अपने अगले बुलेटिन में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के दारुलकूमत अमरावती की तरफ चलते हैं, जहां पर एहतजाजी रैली की इजाज़त न देने पर ख़वातीन और मुकामी देहातियों की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया गया कि पालम विलेज से देहातियों ने मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। ख़वातीन भी इस लाठीचार्ज में ज़ख्मी हुई हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी आमदनी से ज़ायद मुकदमों में हैदराबाद की नामपल्ली CBI अदालत में आज पेश हुए। वाज़ेह है कि अदालत ने जगन मोहन रेड्डी को अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना देने से इनकार किया था। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जो JNU तलबा से मुलाकात के बाद आजकल काफी सुर्खियों में है, आज मुंबई की सिद्धि विनायक टेम्पल में दर्शन के लिए पहुंची। आज से दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक भी रिलीज हुई है। मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे JNU वाक़े के बारे में सवालात किए, लेकिन दीपिका ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे पर मुबैना मिसाइल हमले की वीडियो जारी हुई है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि तैयारे को निशाना बनाए जाने का अमेरिका से ताल्लुक नहीं है, ये दूसरे फरीक की गलती हो सकती है। इसका मतलब साफ तौर पर उन्होंने ईरान पर यह जिम्मेदारी थोप दी है। अमेरिकी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिससे यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को तेहरान में मिसाइल से निशाना बनाए जाने का मंजर करार दिया गया है। तैयारा निशाना बनाए जाने के मामले पर ट्रंप ने वाज़ेह किया था कि तैयारा को निशाना बनाए जाने का अमेरिका से ताल्लुक नहीं है, ये गलती दूसरे फरीक की है। उधर पेंटागन का इल्जाम था कि यूक्रेन का तैयारा रूसी साख्ता मिसाइल लगने से तबाह हुआ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे शुबहात हैं। ये अफसोसनाक है क्योंकि कोई भी किसी भी तरफ से गलती कर सकता है। ये एक ऐसी जगह परवाज कर रहा था जहां पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और हो सकता है कि किसी ने गलती कर दी हो। जिस वक्त तैयारा गिरा उससे चंद घंटे पहले ईरान ने इराक में मौजूद 2 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल फायर किए थे। एक अमेरिकी जरीदे ने पेंटागन और आला खुफिया एहलकारों के हवाले से कहा कि इराकी खुफिया एहलकार भी यही कह रहे हैं कि यूक्रेन का जहाज रूसी साख के टूर मिसाइल लगने से तबाह हुआ है। उधर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि खुफिया मालूमात और शवाहिद से पता चलता है कि 4 शंबे को तेहरान के हवाई अड्डे से परवाज करने के थोड़ी देर बाद गिरकर तबाह होने वाला यूक्रेन का मुसाफिर बरदार तैयारा ईरान के ज़मीन से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल लगने से तबाह हुआ। जबकि अमरीकी मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 4 शंबे को तेहरान के हवाई अड्डे से परवाज के थोड़ी देर बाद तबाह होने वाला यूक्रेन का मुसाफिर बरदार तैयारा ईरान ने गलती से मार गिराया है। यूक्रेन के तैयारे के गिरने को लेकर कई तरफ से इल्जामात आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने भी कहा कि बाज़ इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक इस बात का पता चला है कि तेहरान से परवाज करने वाले यूक्रेन का तैयारा मार गिरा गया, लेकिन इत्तलात के मुताबिक जानबूझकर किया गया इक़दाम नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौजी कार्रवाई के फैसले से कबल कांग्रेस से इजाजत लेने से मुताल्लिक बिल पर वोटिंग हुई, जिसे 194 के मुकाबले में 224 वोटों से मंजूर कर लिया गया। ट्रंप से जंग का इख्तियार वापस लेने का डेमोक्रेट्स का बिल अगले हफ्ते सेनेट में भेजे जाने का इम्कान है। वोटिंग के दौरान 3 रिपब्लिकन ने बिल का साथ दिया जबकि 8 डेमोक्रेट्स ने मुखालिफत की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर होने वाले बिल की सेनेट से मंजूरी का इम्कान नहीं है क्योंकि सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, लेकिन इस करारदाद को रिपब्लिकन की ज़ेर क़यादत सेनेट में मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से और भी कहा जा रहा है कि जो हमला यूक्रेन में हुआ है उसको लेकर कई इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इस दौरान दूसरी तरफ नाइजीरिया से भी एक खबर मिल रही है। मगरबी अफ्रीका मुल्क नाइजीरिया में गुज़िश्ता रात एक फौजी कैंप पर हुए हमले में कम से कम 25 फौजी जवान मारे गए हैं। वज़ारत दिफा के मुताबिक हमला मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क माली से मुत्तसिल सरहद के नज़दीक चंगुदार शहर में एक फौजी चौकी पर हुआ। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। जनूबी अफ्रीका की फौज का तैयारा कांगो में गिरा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि इमदादी टीमों को मुकाम वाक़या रवाना कर दिया गया। बाज़ अफराद मामूली जख्मी हुए हैं जो महफूज बताए जा रहे हैं। इसराइल के कई इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल देखी गई है। कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। मैसूर अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बाज़ गाड़ियां भी पानी में बह गई हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तेहरान की जानिब से इराक में फौजी अड्डों पर 16 मिसाइलों के दागे जाने पर उनका मुल्क ईरान के साथ जंग करने के लिए तैयार था, लेकिन कोई हलाकत न होने के सबब हम जंग की तरफ नहीं गए। जुमेरात के रोज़ अमेरिका में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर बावर कराया कि 3 जनवरी को बगदाद के हवाई अड्डे पर अमरीकी हमले में मारा जाने वाला ईरानी सीनियर कमांडर कासिम सुलेमानी अमरीकी मफादात के खिलाफ नए हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ थे। वो न सिर्फ इराक बल्कि दूसरे ममालिक में भी अमरीकी सिफारत खानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। अमरीकी सदर के मुताबिक अगर ऐवान नुमाइंदगान में इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह एडम शेफ को कासिम सुलेमानी के खिलाफ हमले का इल्म हो जाता तो वो इस पर अमल दरामद से पहले ही मीडिया में इफ्शा कर देते।
ट्रंप का इशारा ऐवान नुमाइंदगान बिलखुसूस डेमोक्रेटिक अरकान की तरफ से की गई तनकीद और नुक्ताचीनी की तरफ था, जिसमें कहा गया कि बैरून मुल्क किसी भी अस्करी हमले पर अमल दरामद से पहले ऐवान को मुतला करना जरूरी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में महाफिजीन ने मुल्क व दस्तूर की सुनामी, तिरंगा रैली में लाखों अफराद की शिरकत, शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर पर सबकी एक ही आवाज। हमारा एहतजाज रंग लाएगा, हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून को फौरन वापस ले, सदर मजलिस उलमा व मशाइखीन का इंसानी सरों के समंदर से खिताब। वादी कश्मीर में जरूरी खिदमात के लिए इंटरनेट बहाल किया जाए, आजादी इजहार पर पाबंदी दस्तूरी हुकूक के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।